Kenan, Harold. Hello, guys. Good morning. We've got Hi. Good viewers, morning. Vivek, Karan, we've got viewers in the line. We're live with two viewers. Hey, Karan. Good morning to you too. Yeah, hi, good morning. How are you? I'm fine. All set, guys? Yep, we had discussed this earlier. We had another call before this. So, yeah, we had a brief discussion on what is going to do, what's going to happen, and all. Like, Sounds do good. we have a PPT also for this, or it will be just like No, one-to-one man, talk? it will be, yeah, it will be a one-to-one talk. It will be a conversation, the real life conversations that we have. So it will be similar to that. That will help people be engaged, right? PPT hota hai, then it's always कि यार वो bookish वाला types, as Gaurav also mentioned, कि यार people think it's a very serious sort of discussion. But Yeah, correct. meanwhile, Abhi, yeah, during the conversation, if anything pops up, na, तो Karan has some documents probably with him. Yeah, even on Google also, you can just show the image or something if we want to. But we'll see if it is required, then only we'll do that. So is the weekend going, guys? All good? Rahul, Gaurav, Nagesh. All good, Vivek. Thank you. Thanks for asking. So we'll just wait for some time. People are still joining, so we'll just wait for 2 or 3 minutes and then we can start our discussion, Karan. Yeah, so sorry for letting you guys wait. Actually, people are still joining and some are in transit, so probably they'll get a bit delayed. How do you want, guys? Karan, shall we, just start with some Yeah, basic details and yes, start with the basics. So, till the people are joining, then we will be in the mainstream topics meanwhile. nice, nice. Yeah. Okay. So, Tanya, you have anything to say, or we just start? I think we can start. The team can join at the same time. Nice, nice. So, hi, everyone. Good morning. So, we have this webinar. You must be aware that ZeroCar is uh,
in pipeline, and we are going to launch it. So we just wanted to have a quick discussion on the queries and the clarifications on for tax and ITR related things that we face in our day-to-day lives. First thing, we have Karan here. You all know me, Vivekan Malaka, senior manager at TechDome, and we have Karan with us, who is the guest here, who is partnering with us for Zeroker, and he has a good and very expert team of CAs under him for working with him. And we thought that it will be a good time when we call Karan and we have a a discussion on how to save taxes, how to invest, how to step into stock market and trading and all. So yeah, hey Karan, good morning. Welcome for the webinar. Yeah, good morning, Vivek. So Karan, just a brief introduction if you can give about you and your organization. So I'm CA Karan Mangal. I'm a qualified chartered accountant, and we run a firm in name of Karan Mangal and Associates Chartered Accountants based in Indore. So we have been in the core practice since 2018. So it's been 5 years. We are into. Before that, I worked with MCX Multi Commodity Exchange and Yes Bank as a senior relationship manager for the corporates. We used to work for the corporates. We used to do funding for the corporates in Yes Bank. So we as an experience, we had a vast experience of income tax, and we came across various queries over there. तो एक बड़ा चैलेंज था सबके लिए कि कैसे सैलरीड एम्प्लॉइज रीच आउट करे किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर या किसी पर्टिकुलर एक सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन उनको मिल सके रिगार्डिंग टैक्स सेविंग फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, हाउ टू प्लान देयर टैक्सेस, बिकॉज क्या होता है कि जब रिटर्न फाइलिंग होती है तो जब तक टैक्स प्लानिंग का टाइम ब्रैकेट वी मिस आउट. टैक्स प्लानिंग करनी है हमें फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग से पहले. अगर आपने उस टाइम टैक्स प्लानिंग करी सो यू एंड अप पेइंग मोर टैक्सेस. सो एक वो वाला बड़ा कंफ्यूजन था. उसके बाद में एक प्रॉपर सॉल्यूशन बैकअप नहीं मिलता था. क्वेरीज का रिजोल्यूशन होता है, आपको इन्वेस्टमेंट्स डिक्लेयर करने, टैक्स सेविंग का करने. तो उसके साथ में फिर हमने टेकडोम के साथ मिलके जीरो करके लिए एक इनिशियल स्टार्ट करा है. सो इट्स ऑल अबाउट अस. थैंक यू नाइस. तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है करंट, व्हिच आई आल्सो माय सेल्फ फेस्ड इन माय पर्सनल लाइफ व्हेन आई जॉइंड द फर्स्ट कंपनी ऑफ इन माय करियर 2014. आई वाज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ दिस कि टैक्स क्या होता है ना. इन हिस्ट्री बुक्स इन द लाइक प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल वी read about it कि हाँ टैक्स होता है जो सरकार को देना होता है कुछ, right? Some amount of money which you which generate the income, you have to pay some amount of that to government. But exactly कितना कब से start करना, because we are very like at that time we are not that aware, right? We are not educated proper in that area. जिसको है knowledge, जिसके परिवार से जैसे business family से आ रहे हैं, who have been doing all that, right? But usually जो common people होता है उसको कम ही idea होता है, जैसे मुझे नहीं था, right? So कब से start करना चाहिए, कैसे start करना चाहिए? Is it like I have to get into a job only, उसके बाद आपको start करना है, या even before that the period starts further? देखिए टैक्स प्लानिंग या फिर टैक्स आईटीआर फाइलिंग आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टार्ट कर सकते हैं व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग. अगर आपके पास में कोई एसेट्स है जो आपको इनहेरिटेंस में मिली है, इफ यू आर अर्निंग सम रेंट आउट ऑफ इट, देन यू आर लायबल टू पे टैक्स इफ यू क्रॉस द बेसिक थ्रेशोल्ड इनकम. तो जो गवर्नमेंट का एडवाइज्ड अभी बेसिक थ्रेशोल्ड इनकम है वो 2,50,000 रुपीज है. अगर आपका 2.5 लाख रुपए से एनुअल इनकम एक्सीड कर रहा है, देन यू आर लायबल टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. अगर आपके 2.5 लाख से इनकम ज्यादा है तो इनकम आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है. आप सैलरीड हो तो अगर आपकी मानिए कि सैलरी में 2 लाख रुपए इनकम है, बट आपको रेंटल से किसी और सोर्स से 2 लाख रुपए आते हैं, ठीक है, तो टोटल आपकी इनकम 4 लाख हो गई है. देन यू आर लायबल टू फाइल द आईटीआर. सो नॉट जस्ट द सैलरी income from any type of sources, if it's exceed 2,50,000 rupees, then you have to file your ITR. एक बेसिक ये हो जाता है. सो वो थ्रेशोल्ड लिमिट है. अगर किसी की भी 2.5 लाख से ऊपर का इनकम आप जा रहा है तो आप ध्यान रखिए, आप आईटीआर फाइल करो आपका टाइमली. सेकंड होता है कि हम कब, ये आपका सवाल हो गया कब स्टार्ट करें, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट करना है.
बट इट इज एडवाइजेबल अगर आपका इनकम टैक्स फिर भी आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर रहा है और आप मेन स्ट्रीम सैलरीड में आ गए हैं या फिर आपने बिजनेस स्टार्ट करा और फिर भी 2,50,000 रुपीज से कम है इनकम आपकी एनुअल इनकम, तो इट्स ऑप्शनल, यू कैन गो विद आईटीआर फाइलिंग। और वो हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि आप आपका आईटीआर फाइलिंग डे वन ऑफ एम्प्लॉयमेंट से स्टार्ट कर दे, बीट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बीट सैलरीड एम्प्लॉयमेंट और एनी काइंड ऑफ इनकम यू आर अर्निंग इधर फ्रॉम रेंट और स्टॉक ब्रोकिंग हो गया है। आजकल तो बहुत सारे एवेन्यूज है सेल्फ इनकम जनरेट करने के, तो किसी भी फॉर्म से अगर आपको इनकम जनरेट हो रही है, सो यू शुड स्टार्ट फाइलिंग द आईटीआर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। Got it. मतलब किसी भी तरह से it's not just business or salary income. Just आप अगर Yes, coaching भी पढ़ा के करा रहे हैं and if you are exactly. doing some NGO work also, if amount is getting credited in your bank account, you are supposed to file RTR. Yes, if amount is getting credited is one of the major points which is to be considered. ठीक है, अगर वो अमाउंट लोन से आया है तो अलग चीज होती है, या फिर बहुत सारी की गिफ्ट से इनकम आई है। बट अगर गिफ्ट इनकम भी आई है, अगर आपको आपके पेरेंट्स ने गिफ्ट दिया है और वो मानिए कि 5 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल गिफ्ट दिया है, तो आपको आईटीआर में वो डिक्लेयर करना है कि गिफ्ट इनकम है। Otherwise, later on, government can come to you and they can charge full tax on it and along with the penalty and interest. So it will backfire on you if you don't file an ITR or for that particular financial and for that particular transaction. Got it. Okay. I'll just stop here for a second and let the team know that team, this will be this is a session where everyone can ask their queries, right? So if you have any questions midway, so you can just raise your hand in the meeting and we'll stop then and there to answer your question. So we'll not wait for the webinar to end and at the last we'll ask the Q&A questions. We'll not be doing that. So during the session itself, because see, the diversity of questions will vary throughout. So at any point of time for any topic related you have queries, please feel free to raise your hand. Okay, ठीक है. Moving on, ठीक है, ये basic वाला part है that when I have, let's say that अभी मैं अपने से शुरू करता हूँ. I joined Infosys in the year 2014. ठीक है, मैंने ज्वाइन किया, 1 साल हुआ, तब तक तो I didn't have any idea कि कैसे करते, तो I skipped that. But after 2015 onwards, मुझे पता चलता है कि हाँ, सब लोग बोल रहे हैं कि ITR फाइल करना है, कुछ लोगों को रिफंड आ रहा है तो पार्टी कर रहे हैं, है ना? तो that exactly वो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि आ कहाँ से रहा है, ऐसा क्या कर रहे हैं. तो तब ये भी नहीं समझ में आता किसके पास किसको रीच आउट करे, राइट? क्योंकि फ्रेंड्स को भी उतना आइडिया होता नहीं था. तो अगर विवेक 2015 की बात कर सकते, बैक देन देयर वर नॉट मेनी एवेन्यूज. पहले गूगल पर या फिर इतना एप्लीकेशंस और ये सब ब्लॉग्स और इतना सब पॉपुलर नहीं था. तो उस समय इंफॉर्मेशन ऑनलाइन हो गया, गूगल पे हो गया, इतना अवेलेबल नहीं होती थी एंड अवेयरनेस भी थोड़ी कम थी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो उस समय पे जिस तरह से गवर्नमेंट वर्क करती थी और अब बहुत करते, तो अभी जो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान है इन चीजों पर, सो दे गिव यू नोटिसेस इफ यू डोंट फाइल. तो सबसे पहले अवेयरनेस तो ये जरूरी है कि आप इनकम अगर आप अर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं, so you can just Google, you can reach out to someone over the Google, और आप आपके फैमिली फ्रेंड्स या पीयर्स के थ्रू भी जा सकते हैं जो आपको किसी कंसल्टिंग फर्म से रेफर कर सकते हैं. ठीक है, आप उनसे आप कंसल्ट करें, उसके बाद you can give them your details के what kind of salary, what amount of salary you are getting, what other sources of income you have. फिर आप उनसे कंसल्ट करके and you can reach out to a proper tax planning for the particular financial year. So one thing is that. Second is that in case you do not have any access to this kind of resources, you can easily ask your HR, your company HR, and they will surely help you out about this, because HR is the one point where they can help you out, or they can at least refer you to someone who will help you out with the taxes. तो एक पार्ट ये होता है. एंड क्योंकि एचआर के एंड से ही आपकी जितनी भी टीडीएस लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी है, सो दे हैव वन बेसिक आइडिया अबाउट दैट कि आपका टैक्सेबल लिमिट में है नहीं है. सो एक बेसिक आइडिया वहां से लेके देन यू कैन गो अहेड विथ द डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर आईटीआर फाइलिंग एंड टैक्स फाइलिंग. Got it. So I think in our TechDome also we have many people who are in the bracket of 0 to 3 years of experience. And I see there are many people here. So if any of you guys have any doubt regarding this, because this is the time period when you start
getting more into the investment part, the tax saving part, tax planning part, right? तो किसी को भी अगर कोई डाउट है, any of you, Mukul, Praneeth, if you have any doubts, you can ask right here. Mukul, कोई क्वेश्चन नहीं है, भरना ही नहीं है टैक्स? या नागेश, हाय, यस. आई गेस विवेक, एक कॉन्सेप्ट शायद इनको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, विच इनकम टैक्स मॉडल टू गो विथ, वेदर इट इज द न्यू इनकम टैक्स मॉडल या पुराने इनकम टैक्स मॉडल से जाना चाहिए. सो आई गेस वो भी एक बेसिक क्वेश्चन रहता है फॉर पीपल हु आर इन द 0 to 3 years ऑफ ब्रैकेट. तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? सो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये दिसंबर एक ऐसा समय है जब आपको फाइनलाइज करना होता है कि आप कौन सी टैक्स रेजिम में जाएं. और फाइनलाइजेशन तो जो व्हेन यू हैव टू फाइनली डिसाइड वो आईटीआर फाइलिंग के टाइम पर ही होता है, बट दिस टाइम यू हैव टू प्लान योर टैक्सेस. सो बेसिक मैं आपको डिफरेंसेस पहले बताता हूँ न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या होता है. ओल्ड टैक्स रेजिम में यू कैन क्लेम डिडक्शंस. जो हम पहले डिडक्शंस की बात करते थे, हमने टैक्सेबल म्यूचुअल फंड्स कर लिए हैं, हमने हाउस रेंट कर लिया है हमारा, या फिर हाउस की ईएमआई जा रही है, होम लोन ईएमआई जा रहा है, उसका डिडक्शन है, बच्चों का ट्यूशन फीस का डिडक्शन है, पीएफ का डिडक्शन है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है तो डिडक्शन है आपका. ठीक है, तो ये सारे डिडक्शंस हम ओल्ड टैक्स रेजिम में क्लेम कर सकते हैं, बट दीज डिडक्शंस कैन नॉट बी क्लेम इन न्यू टैक्स रेजिम. डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम में जो टैक्स स्लैब्स है वो हायर एंड पर है. अगर आपके पास हायर डिडक्शंस है तो फिर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाइए. अगर आपके पास में डिडक्शंस कम है, आपके पास होम रेंट नहीं है, या फिर आपके पास होम लोन का ईएमआई नहीं है, एटीसी का जैसे आई अज्यूम एटीसी का डिडक्शन लिमिट होता है 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन लिमिट होता है एटीसी का इनकम टैक्स एक्ट में. तो इफ यू आर नॉट रीचिंग दैट लेवल ऑफ 1,50,000, आपके पास 10,000 20,000 की डिडक्शन है, सो गवर्नमेंट ने ये एक प्रोविजन दिया है कि आपके पास डिडक्शंस नहीं है, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट मोर इन टैक्स सेविंग ऑन टैक्स सेविंग फ्रंट, कि आप एटीसी डिडक्शंस के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रहे हैं, आप मेडिकल प्रीमियम पे कर रहे हैं. सो अगर वो बहुत ज्यादा डिडक्शंस नहीं है तो आप लोअर टैक्स स्लैब में जाके न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट कर सकते हैं. अब इसका एक बेसिक सा जो प्लेंटिफ रूल है कि आप कैसे डिसाइड करें, आप कैसे आइडिया ले कि मुझे आपको किस सैलरी ब्रैकेट में जाना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपए के अराउंड है, 15 लाख रुपए से ऊपर है, या अराउंड 15 lakhs वी कैन कीप इट, और आपके पास डिडक्शंस 2.5 लाख रुपए से कम के हैं, ठीक है, जो आप एटीसी डिडक्शंस, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के डिडक्शंस ले रहे हैं, आप होम लोन का डिडक्शन ले रहे हैं, ये अगर आपके एनुअल डिडक्शंस 2,50,000 रुपीज से कम अगर हैं ये डिडक्शन, then you should go with new tax regime. It will be more beneficial for you. उसमें आपकी lesser tax liability आएगी. First of all, second thing is if you have higher deduction, आपकी सैलरी 15 लाख से ऊपर है, ठीक है, और आपके पास डिडक्शंस 2,50,000 से क्रॉस कर रहे हैं, या 15 lakhs के नीचे है और 2,50,000 से ज्यादा के आपके पास डिडक्शंस है, ओल्ड टैक्स रेजिम विल ऑलवेज बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. जो आपका टैक्स बेनिफिट है उसमें आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ज्यादा बेनिफिट डिराइव होगा. एक ये बेसिक इंसाइट हो गया कि ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम कैसे वर्क करती है. बट एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये इसमें कंसीडर करना है कि अगर आप पहले साल में फॉर एग्जांपल आपने इस वाले फाइनेंशियल ईयर से न्यू टैक्स रेजिम में आपने रिटर्न फाइल करा है, सो यू हैव ओनली वन टाइम ऑप्शन. आप सिर्फ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एक बार और ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी टैक्स रेजिम चेंज कर सकते हैं. एवरी ईयर यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन कि आप हर साल, मुझे आज इस साल मुझे ओल्ड टैक्स रेजिम में ज्यादा बेनिफिट दिख रहा है तो मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में ले लेता हूँ, नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है कि मेरे पास डिडक्शंस कम है तो मैं न्यू टैक्स रेजिम में बेनिफिट. ऐसा नहीं होगा. सिर्फ आप एक बार पहले ऑप्ट कर सकते हैं, ऑप्ट इन कर सकते हैं, और एक बार ऑप्ट आउट कर सकते हैं टैक्स रेजिम से. अगर आपने एक बार न्यू टैक्स रेजिम में कंटिन्यू फाइनलाइज कर लिया, फॉर एग्जांपल आप ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम में आ गए, ठीक है, उसके नेक्स्ट ईयर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप वापस ओल्ड टैक्स रेजिम में आ सकते हो. If the second year you continue with the new tax regime, then you have to continue with new tax regime for all the years going ahead. You can't come back to old tax regime. So एक ये बहुत important discussion point है कि आप old tax regime में जाएं कि new tax regime में जाएं, क्योंकि एक ही बार आपको वो option मिलेगा opt in या opt out करने के लिए. तो
इसके रिगार्डिंग और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो हम एड्रेस कर सकते हैं। तो करण, लाइक जैसे लाइक इनकम बढ़ता है तो हाँ जी। अभी जैसे हो सकता है कि दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर मी टू गो टू द न्यू टैक्स रेजिम, राइट? एंड इनकम बढ़ा है, उसके बाद मुझे ओल्ड पे बाद में स्विच करना है, लाइक नॉट एग्जैक्टली इन एन ईयर, सो डोंट यू थिंक Okay. इट्स अ लॉस टू गो टू न्यू टैक्स रेजिम? No, Gaurav, for higher tax salary brackets, if you are 15 lakhs above, you have salary above 15 lakhs, ठीक है? So क्या होता है ना, इसमें डिडक्शंस की तो एक लिमिट है पूरे सेक्शन में, इनकम टैक्स एक्ट में। आप 3-3.5 लाख से ऊपर का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो, जैसे एटीसी में 1.5 लाख का लिमिट लगा रखा है। तो आप इंश्योरेंस, पीएफ, आपका ट्यूशन फीस, उसके बाद आपका होम रेंट, होम लोन प्रिंसिपल, ये सब डिडक्शंस लगाओगे तो टोटल आप 1.5 लाख जा सकते हो। अलॉन्ग विद डेट ATCCD अगर आप जाते हो तो आप उसमें जस्ट अ मिनट में, सो आप अगर ATC डिडक्शन जाते हैं तो उस केस में आपको 1,50,000 मिलता है। ATCCD या ATCCD में NPS में 50,000 ले सकते हो। तो टोटल आपका जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो आप जा सकते हो 3-3.5 लाख रुपए तक, उसके बाद वो स्टेगनेंट हो जाएगा डिडक्शन। सो हायर सैलरीज के लिए हमेशा न्यू टैक्स रेजिम ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा लॉन्ग रन में, ना कि ओल्ड टैक्स रेजिम, क्योंकि एक कैपिंग कर रखी है गवर्नमेंट ने ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम में, और वो कैपिंग के कारण वो आपको बेनिफिट लॉन्ग हायर सैलरी ब्रैकेट्स में न्यू टैक्स रेजिम में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। So eventually it's just about to decide when to switch. मतलब Yeah, it should exactly. be, It's everyone about should when switch. to switch as per just a minute. Screen will be disturbed. I have to connect my camera. So it's about that when you have to opt in, it's very important. And the at zero curve, we can give an option that we can, as per the financials, as per the form 16 and salary division of the individuals, we can give them in comparative as per their deductions. We can give them a comparative analysis of new tax regime and old tax regime for this particular financial year. So it will help the assessees to decide whether it's beneficial to go with new tax regime or old tax regime. We can have that one particular facility at zero curve. Got it. Nice, thank you. Thank you, and thanks, Gaurav and Nagesh. Okay, so we have a question from Akshay Kumar on the chat. So can you please explain how taxing works? That's really good because that's the basic of tax, how it works, and then how it differs for salaried and employees and businessmen. So Okay. See, for first of all, salary वालों को तो कोई छूट है नहीं, basically they can't hide their income, ठीक है ना? अभी आप बिजनेस में हो तो आपने टर्नओवर करा, टर्नओवर तो एक्चुअल जीएसटी से आप डिराइव कर लोगे, बट यू कैन इंक्रीज योर एक्सपेंडिचर, यू कैन क्लेम मोर एक्सपेंसेस एंड यू कैन रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंगली। मैंने 10 करोड़ का टर्नओवर करा, 9 करोड़ का खर्चा दिखा दे तो मुझे 1 करोड़ पे टैक्स भरना है, ठीक है? बट सैलरी में तो जो आपको क्रेडिट आया है, आपके एम्प्लॉयर ने भी डिक्लेयर करा है कि मैंने इतना टीडीएस डिडक्ट करा है, सो यू हैव वेरी लिमिटेड एवेन्यूज इन सैलरीड इनकम। तो सैलरी इनकम में टैक्स प्लानिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस समय पर, क्योंकि अभी बिजनेस में आप हो तो आप ऑडिट करवा लेंगे तो ऑडिट में कुछ एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, आपके पास बिल्स है, ये है, ठीक है? उसके बाद बहुत सारे एवेन्यूज अलग अलग होते हैं कि आप वहां पे टैक्स करके टैक्स सेव कर सकते हो अगर इफ यू मिस आउट टैक्स प्लानिंग पार्ट, ठीक है? बट सैलरीड में आपका फिक्स्ड है, गवर्नमेंट को पूरा रिकॉर्ड जाता है, एम्प्लॉयर की तरफ से भी पूरा रिकॉर्ड जा रहा है टीडीएस के फॉर्म में, ठीक है? आपका अकाउंट में क्रेडिट हो रही है सैलरी, वो उनके पास पूरा रिकॉर्ड है डेफिनेटली, so you can't hide something. So one option you have left with is you can plan your income, you can plan your taxes. Tax planning कब करना चाहिए हम वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। So every tax season is for the tax filing is for a financial year. Financial year 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। So 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच इन 12 महीने में आपकी जो इनकम हुई है, गवर्नमेंट उसका असेसमेंट करवाती है आपसे इनकम टैक्स रिटर्न में और उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स पे करवाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ध्यान रखो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का ब्रैकेट है, उसके पहले अगर कोई इनकम हुई तो वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में काउंट होगी, अगर अप्रैल या उसके बाद में कोई इनकम हुई तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में काउंट होगी, ठीक है? सो वन थिंग इज दिस। सेकंड, प्लान टैक्सेस प्लान कब करें? सो एक बहुत जनरल क्वेरी हमारे पास में आती है,
लोगों को लगता है कि जिस दिन टैक्स फाइलिंग होगा उस दिन टैक्स प्लानिंग होगा, बट इट्स अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन। टैक्स प्लानिंग किया जाता है फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि इनकम तो आपके अप्रैल टू मार्च के बीच में काउंट हो रही है, सो टैक्स प्लान भी आपको उसी बीच में करना है। आपको मार्च के पहले पहले आपका टैक्स प्लान करना है। यू हैव टू प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स बिफोर मार्च, यू हैव टू प्लान योर डिडक्शंस बिफोर मार्च। आपको जो डिक्लेरेशंस करने हैं वो मार्च के पहले करने हैं, तो ही आप उसका बेनिफिट आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे ले पाएंगे। आईटीआर फाइलिंग डेट इज जस्ट एन एक्सटेंडेड डेट कि आप 31 जुलाई को जाके अपने लास्ट मार्च तक के रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ सबमिट कर सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट दैट। सो प्लानिंग आपको जनवरी टू मार्च में या फिर इस कंटिन्यूइंग फाइनेंशियल ईयर में करनी है, ना कि आईटीआर फाइलिंग करते टाइम। आईटीआर फाइलिंग करते टाइम आपको टैक्स सेव करने का कुछ जो डिडक्शंस डलवा रहे हैं, दैट्स टैक्स इवेजन, दैट्स नॉट टैक्स प्लानिंग। वो टैक्स की चोरी कहलाएगी। उसमें गवर्नमेंट आपको कभी आके नोटिस भी दे सकती है, एंड दे कैन रिकवर दैट इफ you can't prove that that deduction is actual, so they can recover that tax also along with penalty and interest. Got it. Looking at the time constraint, we'll just proceed for the next question now. Thanks for that. Akshay, we'll get back to you if you have any other questions on that. So Farhat has asked, what if my annual salary exceed 2.5 lakhs and per annum and haven't filed any ITR? ये सबको रहता है कि यार अगर नहीं कर पाया, मैं भूल गया या डेडलाइन पार हो गई। यूजुअली नहीं हो पाती है because they always extend from 31st July to September या October तक तो जाता ही है। But still, what happens in that case? Okay, so I will address this. पहली बात तो आप ये मान लो कि अब जो गवर्नमेंट का वर्किंग पैटर्न है वो बहुत अलग हो गया है। पहले डेट एक्सटेंशंस होते थे, ये होता था, वो अब बहुत देखने में नहीं आता है। लास्ट 2-3 ईयर से हम देखते हैं, सिर्फ कोविड एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल सिचुएशन थी, तब उन्होंने डेट्स काफी एक्सटेंड करी थी और दैट वाज एन अनअवॉइडेबल सिचुएशन एज वी ऑल नो। पर अगर आप लास्ट डेट का वेट ही मत करो ना, आपको तो 31st मार्च यू हैव टू फाइल, so you don't need to wait till 31st July कि नहीं लास्ट डेट आएगा तो ही हम फाइल करेंगे। you plan your tax filing accordingly. आप अगर उसको अप्रैल में भी कर देते that's well and good, no one is going to ask you for that कि नहीं आपने पहले की फाइलिंग कर दी। so I always suggest कि आप अप्रैल में फाइलिंग करें। अप्रैल में फाइलिंग ना करें, एटलीस्ट यू कंसल्ट विथ योर टैक्स फाइलिंग एक्सपर्ट और फ्रॉम द पर्सन जिससे भी आप टैक्स फाइलिंग करवा रहे हैं, यू स्टार्ट कंसल्टिंग देम। आप अप्रैल में एटलीस्ट उनसे एक बार डिस्कशन कर लें कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। आपको भी कुछ वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, आपको भी कुछ टाइम लगेगा डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में, एंड यू डू इट प्रोएक्टिवली। तो पहली बात, लास्ट डेट तक मत जाइए। फिर भी कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस के कारण आपकी लास्ट डेट मिस आउट हो जाती है। सो अभी जो प्रोविजन है उसमें 31st लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो फाइलिंग था, अगर 22-23 फाइनेंस 31st मार्च 23 का हम देखते हैं, तो 31st जुलाई वाज द बेसिक फाइलिंग डेट। फिर भी अभी आप 31st दिसंबर तक बिलेटेड फाइलिंग कर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग है कि 1000 रुपए का पेनल्टी है। अगर आपका 5 लाख रुपए तक का इनकम आ रहा है तो 1000 रुपए पेनल्टी अलॉन्ग विद इफ देयर इज एनी टैक्स लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ इट। सो टैक्स लायबिलिटी और 1000 रुपए लेट फीस भर के अब आपका आईटीआर 31st दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद भी अगर आप मिस आउट कर जाते हैं, सो यू कैन फाइल आईटीआर यू। आईटीआर यू में एक ही कंडीशन है कि आपका अगर कोई टीडीएस हुआ है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, पहली बात, और आपको जो पेनल्टी लगने वाली है वो 5000 रुपए की पेनल्टी हो जाती है, जो अभी 31 दिसंबर तक 1000 की पेनल्टी है। So if anyone in the group or in TechDome or those people are on webinar, वो अगर किसी ने मिस आउट कर दिया है आईटीआर, तो 31st दिसंबर is the date. You can hurry up and you can start filing. You can file your ITRs for the financial year 23. Got it. Okay. Thanks. Rahul, I saw you raise your hand. Do you have any question here? Question, Vivek. So, Karan, you were mentioning it's different for salaried and business, but if you plan properly for salaried as well, year around you should be able to be in a good shape, right? You have Rahul, yeah, there is some line break. I couldn't get you completely. Can you just repeat your question? Am I audible now? Yeah. Yes. Okay. So what I was telling is for salaried as well, if we are able to plan better, right? So we have a couple of things going on, like we pay our kids' fees, we have our health payments, we have premiums, we have tax saving mutual fund. Exactly. So if planned better for salaried as well, we should be able to get tax planning in a better way rather than just
other perspective. So if we have NPS also apart from the ATC deductions, Right. so can you Right. throw some light there that being a salaried individual, how I can enable those kind of things so that I should be able to plan my tax better? Yeah, that only we discussed in the last topic. उसमें यही था कि आपके पास 31 मार्च तक का ब्रैकेट है. अब 31 मार्च के पहले जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, यू क्रिएट योर पूल. आप पहले ये एनालिसिस कर लो कि मेरे पास इतना अमाउंट है, मैं इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल, इफ समवन सैलरी इज 12 लाख रुपीस, 12 लाख का सैलरी है, उन्होंने होम लोन ले रखा है, तो एक होम लोन का पार्ट उनको भी पता है कि ये हम डिडक्शन में क्लेम कर लेंगे. साथ में कुछ मेडिकल प्रीमियम है, पीएफ डिडक्शन हो रहा है कंपनी से, वो पार्ट हमें पता है. बट दैट्स नॉट द मैक्सिमम डिडक्शन. सो अब अगर मैं मेरा तो ये सजेशन हमेशा रहता है कि आप इसको ओवर द ईयर ही प्लान करो कोई भी इन्वेस्टमेंट्स को. सो उसमें क्या होता है, आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर पाते हो, उसमें आप बेटर प्लानिंग कर सकते हो. बट ठीक है, फिर भी अगर आपने अभी तक मिस आउट कर दिया है तो 3 महीना है आपके पास. इस 3 महीने में यू कैन कंसल्ट योर टैक्स पर्सन, जिससे भी आप टैक्स फाइलिंग करवा रहे हैं. यू कैन कंसल्ट देम. आप उनसे पूछ लो कि मेरे पास ये डिडक्शंस है आज की डेट में, इस पे मेरी क्या लाइबिलिटी बन रही है और मुझे क्या इन्वेस्ट करना होगा अगले 3 महीने में, ताकि मैं, और उसमें मेरी लाइबिलिटी कितनी कम हो जाएगी, टैक्स लाइबिलिटी मैं कैसे उसमें रिड्यूस कर सकता हूँ. एक बार आप वहां पर रीच आउट कर गए, दे विल गिव यू वेरियस ऑप्शंस कि आप ये चीजें कर लो, आपके पास में एटीसी में कुछ गैप है अभी, वो कर लो. एनपीएस है, आप वो कर लो. आप एडिशनल हाउस रेंट दिखा सकते हो इफ इट्स पॉसिबल, तो आप वो दिखा दो. तो वो प्लानिंग आपको अभी करना रहेगी और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं. सो इट्स हाई टाइम कि आप जनवरी टू दिसंबर यू शुड फोकस ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली, कि आप टैक्स प्लानिंग इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें. So if you are good at it, आपने 31 मार्च तक वो सब प्रॉपरली प्लान कर लिया, so you will be saving a lot of taxes. और 31 मार्च के बाद ना जाकर आप इसको पहले करेंगे तो ज्यादा हमेशा हेल्पफुल रहेगा. तो करंट फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज क्या क्या ऑप्शंस है? एज इन जब मैं था तब हमारे पास क्या होता था, एक हाउस रेंट वाला एक होता था, राइट, कि जिसमें हाँ हम एचआरए जो लेते थे तो उसमें सिर्फ हम स्लिप दे देते थे एंड राइट अपलोडिंग दैट डॉक्यूमेंट हमारा रिबीट हो जाता था. राइट. इसके अलावा और ज्यादा चीजें पता नहीं थी तब तक. अब तो वी हाँ हैव मेनी थिंग्स. सो व्हाट ऑल द एवेन्यूज वी हैव? ठीक है. सो हम स्टार्ट करते हैं. बेसिकली देखिए, अगर आपकी सैलरी, हम सैलरी ब्रैकेट्स के हिसाब से डिस्कस करते हैं विवेक इसको. तो क्या होता है, अगर आपका 5 लाख का सैलरी ब्रैकेट है, इफ यू आर अप टू 5 लाख रुपीस, तो 5 लाख रुपए तक वैसे भी 2.5 लाख रुपए बेसिक सैलरी का रहता है. तो ब्रैकेट के हिसाब से अगर हम प्रैक्टिकली जब रिटर्न फाइलिंग में देखते हैं, इफ योर इनकम इज सैलरीड इनकम इज अप टू 5 लाख टोटल इनकम, नॉट एग्जैक्टली सैलरीड इनकम. टोटल इनकम में अगर आपको कोई डिविडेंड से इनकम मिली है, आपने अगर कोई ये करा है, रेंटल इनकम आ रही है, आपको इंटरेस्ट इनकम आ रही है, वो भी इंक्लूड होगा अलोंग विथ योर सैलरी. अगर वो 5 लाख रुपए तक है, so you don't need to worry about any investment. Your tax will be zero. So you need to just worry about कि आप अपने टाइमली जो भी आपका ड्यू डेट आईटीआर फाइलिंग जो 31 जुलाई होता है इन जनरल, वो आप उसमें फाइलिंग कर दे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फाइलिंग टाइम पे करें अप टू 5 lakhs ऑफ सैलरी ब्रैकेट. ठीक है. नेक्स्ट इज कि आप 7.5 लाख 8 लाख रुपए के सैलरी ब्रैकेट में आ रहे हैं, सो यू कैन इजीली bring your tax liability to zero in that case, but if you plan it properly. तो प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? एटीसी डिडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा अवेयरनेस होगा इस चीज में. तो उसमें अगर आपके चिल्ड्रन का ट्यूशन फीस हो गया, वो आप क्लेम कर सकते हैं. इफ यू आर पेइंग होम लोन, तो होम लोन में आप पे कर सकते हैं. होम लोन में जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट गया है वो एटीसी में आपको डिडक्शन मिलेगा. पीएफ जो आपका कट रहा है कंपनी से, वो आपको डिडक्शन मिलेगा पूरा. उसमें आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखी, लाइफ इंश्योरेंस, नॉट हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, सो वो आपको डिडक्शन मिलेगा. अगर इफ यू हैव अ गर्ल चाइल्ड, तो सुकन्या समृद्धि स्कीम एक नया अभी आया है, वो आपको डिडक्शन मिलेगा. सो अप टू 1,50,000 रुपीज. तो अब मानिए कि आपका 7.5 लाख का इनकम है, ठीक है, वी नीड टू ब्रिंग इट टू 5 लाख रुपीज. तो 1.5 लाख रुपए तो आप एटीसी से प्लान कर सकते हो. ठीक है. फिर भी अगर आप मानिए कि बहुत लेट हो गए, 30 तारीख आ गई, 31 मार्च आ गई, आपने प्लान नहीं करा, यू कैन इजीली गो विद 5 ईयर इन्वेस्टमेंट एफडी. ठीक है. आपने टैक्सेबल म्यूचुअल फंड्स ले लो, या तो म्यूचुअल फंड्स तो अच्छा मार्केट है. द मार्केट इज वेरी पॉजिटिव फॉर द नेक्स्ट 4-5 years. तो अच्छे रिटर्न्स देंगे. 5 साल का लॉक इन रहेगा, बट it will give you good returns over the time.
ठीक है, या फिर आप 5 साल की एफडी में जा सकते हैं, तो आप एफडी प्लान करें इमीडिएट। अगर आप बहुत एकदम वर्ड्स पे आ गए 30 मार्च 31 मार्च को आप प्लान कर रहे हैं, तो उस केस में एंड इजीली यू कैन गेट डिडक्टेड योर 1,50,000 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो 1.5 लाख रुपए आपके आ गए, आपकी इनकम आ गई 6 लाख रुपए पर। ठीक है, 7.5 में से 1.5 आपने यहाँ डिडक्ट कर लिया। सेकंड इज यू कैन गो विद एनपीएस 80CCD2 सेक्शन में, उसमें आपका 50,000 का लिमिट रहता है, आप नेशनल पेंशन स्कीम में एडिशनल सेव कर सकते हैं, 50,000 रुपए आप वहां से ले सकते हैं। थर्ड इज आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का रहता है। प्रीमियम में 2 पार्ट रहते हैं, एक तो प्रिवेंटिव हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, प्रिवेंटिव नॉट हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट रहता है बेसिकली। तो अगर आपने कुछ चेकअप्स कराए हैं पिछले साल में, आपके मेडिकल चेकअप्स हुए हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करा है, आपको हमेशा वो बिल्स यू हैव टू कीप इट सेफ, वो हमेशा काम आते हैं। 5,000 रुपए का डिडक्शन विद दैट प्रूफ यू कैन क्लेम। ठीक है, तो 5,000 रुपए तो, और इन जनरल आजकल सबका होता ही है, कुछ मेडिकल टेस्ट है, ये है, आजकल इन जनरल कोई आजकल एज अ प्रिकॉशनरी बेसिस भी करवाते हैं, सो यू कैन क्लेम दैट। 5,000 रुपए का वहां डिडक्शन मिलता है। इफ यू हैव डिपेंडेंट पेरेंट्स डिपेंडेंट कैसे डिसाइड होगा, इसका मैं आपको कैटेगरी बता देता हूँ। तो डिपेंडेंट पेरेंट्स इज कि अगर आपके 60 इयर्स अबव ऑफ एज पेरेंट्स एंड इफ काइंड ऑफ अगर पेंशनर है, तो फिर पेंशनर पेरेंट्स को हम डिपेंडेंट मान सकते हैं। अगर प्राइवेट जॉब में थे, इफ दे आर रिटायर्ड फ्रॉम देयर जॉब, तो हम डिपेंडेंट पेरेंट्स उनको कंसीडर कर सकते हैं। बिजनेस में है अगर पेरेंट्स, इवन दो दे आर वर्किंग, बट if they are above 60 years of age, we can consider them as dependent parents. So अगर आपका सैलरी ब्रैकेट, इनकम ब्रैकेट आपके पेरेंट्स के इनकम ब्रैकेट से ज्यादा है, सो यू ट्राई कि उनका इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप आपके अकाउंट से पे करो, सो आप उनका भी मेडिकल डिडक्शन ले पाओगे। ठीक है, आप आपका तो ले ही रहे हो, आपका प्रीमियम आप पे करेंगे ही, पर उनका भी प्रीमियम आप पे करोगे, आप 50,000 रुपए का डिडक्शन इसमें 80D सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें आप डबल बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, मैं इस पे आता हूँ, जो होता है हाउस रेंटल के लिए। सो हाउस रेंटल में 2 पार्ट होते हैं। कंपनी आपको एचआर दे रही है, सो आप एचआर क्लेम कर सकते हैं। अब लेट मी टेक एन एग्जांपल विद दिस। आपकी जॉब इंदौर में है, ठीक है, इन टेकडोम, एंड यू हैव अ प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल इन उज्जैन, जिस पर आपने होम लोन ले रखा है। ओके, सो यू कैन हैव डबल डिडक्शन फॉर दिस। अगर आपकी जॉब लोकेशन इंदौर है और आपकी प्रॉपर्टी है इन उज्जैन में, आप उस पे होम लोन डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो, और यू कैन क्लेम एचआरए अलोंग विद इट। एचआरए डिडक्शन भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि जॉब लोकेशन आपकी इंदौर है, तो आप हाउस रेंट यहाँ पे कर रहे हो और वहां पर आप आपका होम लोन पे कर रहे हो। तो ये केस 1 हो गया कि आपके पास होम लोन है, सिटीज अलग है, वर्किंग सिटी अलग है, और आपका जहाँ पे घर है वो सिटी अलग है, तो एक सिचुएशन ये हो गई। सेकंड सिचुएशन इज कि कोई होम लोन ले नहीं रखा है, सो यू कैन शो इन योर आईटीआर कि आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे कर रहे हो, सो यू कैन क्लेम एचआरए फॉर दैट ऑल्सो। नहीं है होम लोन, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेक्शंस हमारे पास में, अगर एचआरए कंपनी के सैलरी ब्रैकेट में एचआरए शो कर रहा है, तो आप एचआरए डिडक्शन क्लेम कर लो। अगर एचआरए नहीं दिख रहा है, तो फ्लैट यू विल गेट 60,000 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG फॉर रेंट पेड। ठीक है, तो 60,000 रुपए का डिडक्शन, तो हम ये 3 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेट डिडक्शन तो इन बेसिक सेक्शन ही रीच आउट कर जाते हैं। उसके बाद सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट में आपको मिलता ही है 10,000 रुपए का फ्लैट डिडक्शन की, 10,000 रुपए तक इंटरेस्ट आता है, तो उस पर आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, डोनेशंस करना ऑप्शंस रहता है, ये है। सो टैक्स प्लानिंग इसलिए ही इंपॉर्टेंट है कि 31 मार्च के पहले आप ये सब चीजें कर लोगे। So even if you are falling around 8 lakhs rupees annual income, आपका सैलरी इनकम 8 लाख के अराउंड भी है एनुअल इनकम, तो you can reduce your taxes to 0 in that case also. So ये इम्पोर्टेंस है टैक्स प्लानिंग का। और अगर यही आप अगर टैक्स प्लानिंग नहीं करेंगे, if you have 0 deductions, considering 0 deductions, आप पूरी 8 लाख पे अगर टैक्स इनकम पे करते हैं, so it goes to around 80,000 rupees of taxes. Okay, and you can bring it down to 0 if you plan it timely. Just that's all is needed from your end. ठीक है, अब सिर्फ 2 लाख रुपए का, अगर 8 में से सिर्फ 2 लाख रुपए का टैक्स प्लान हुआ है आपका, ठीक है, आपने होम रेंट पे कर दिया, आपने या तो ईएमआई पे कर दी, एटीसी आपका यूज्ड है,
तो भी अगर आप करेंगे तो भी 40,000 रुपीज ऑफ टैक्सेस, अराउंड 35 to 40,000 रुपीज ऑफ टैक्सेस विल लायबिलिटी विल अराइज ऑन इनकम ऑफ 6 lakhs रुपीज। वो आप जीरो कर सकते हो इफ यू प्लान इट प्रॉपर्ली। सो got it. आई सजेस्ट किया 31 मार्च के पहले उसको प्रॉपर्ली टैक्स प्लानिंग टाइमली टैक्स प्लानिंग करनी ही है डेफिनेटली, बिकॉज अब इससे इतना कुछ पता चल गया, तो इवन आफ्टर दिस इफ वी आर नॉट प्लानिंग इट अकॉर्डिंगली देन इट्स नाइव एंड but nice insights. Thanks, Karan. Let's quickly move on to the next question. Gaurav had how should someone plan taxes and investments to allow and help in major purchases, loans like car or home in future? ये मेरा भी हमेशा सवाल रहा है कि मुझे अगर लोन चाहिए कोई भी, चाहे होम लोन हो चाहे कार लोन हो, राइट, इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ अपने, और कैसे मैं प्लान कर सकता हूँ टैक्सेस एंड इन्वेस्टमेंट्स अकॉर्डिंगली, ताकि मुझे टैक्सेस में भी इसका बेनिफिट मिल जाए एंड वो लोन में भी काम आ जाए। ठीक है। सो देखिए, कार लोन का तो ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है कि अगर आप कार लोन ले रहे हैं तो आप कार लोन पे आप कोई टैक्स बेनिफिट या फिर डिडक्शन काइंड ऑफ चीज आपको उस केस में नहीं मिलती है। ओनली वन ऑप्शन इज देयर कि अगर आप ईवी परचेज कर रहे हैं, सो इनकम टैक्स में आप अलग से 50,000 रुपए साल का एक ईवी की जो ईएमआई आप पे कर रहे हैं, उस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपने परचेज करा है, न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल, और उस पर आप अगर लोन पे कर रहे हैं, तो वो लोन का डिडक्शन एक ही ऑप्शन है पर्टिकुलरली कार के लिए। एज एन सैलरीड इंडिविजुअल आई एम स्पीकिंग, सो सैलरीड में एक ही, कार में एक ही ऑप्शन है। हाँ, बट इफ यू प्लान योर होम लोन अकॉर्डिंगली, तो होम लोन में ये होता है कि एक सैलरी ब्रैकेट पर्टिकुलर पहुंचने के बाद होम लोन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स प्लानिंग फीचर बेसिकली। तो क्या होता है कि आप प्रिंसिपल जो है आपका, अब उसमें आप समझो ऐसे कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का लोन लिया, अब 10 लाख में का लोन है, तो लोन तो आपको चुकाना ही अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ठीक है। सो आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट का भी डिडक्शन दे रही है, फर्स्ट थिंग इज दैट, और गवर्नमेंट आपको प्रिंसिपल रिपेमेंट का भी डिडक्शन दे रही है। तो जो आपने लोन दिया है उस पे भी, लोन जो आपने लिया है बैंक से, उस पे भी 30% या 25-20% आप जिस भी टैक्स स्लैब में आ रहे हो, आपको एनुअल वो वाला सेविंग भी हो रहा है प्रिंसिपल अमाउंट पे, और इंटरेस्ट जो डिडक्शन मिल रहा है उस पे भी आप अपना टैक्स सेव कर रहे हो। सो इट बिकम्स अ डबल बेनिफिट इन केस ऑफ होम लोन। सो होम लोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स सेविंग फीचर। ये एक टैक्स सेविंग फीचर भी, और इन्वेस्टमेंट फीचर के हिसाब से भी प्रॉपर्टी इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दैट आई कंसीडर पर्सनली। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, एंड एवरीवन शुड प्लान अ प्रॉपर्टी एट एन इनिशियल स्टेज। अब आप एक बेसिक सैलरी लेवल को आपने क्रॉस कर लिया है, एंड इफ यू नो कि ठीक है हम एक पर्टिकुलर ईएमआई बियर कर सकते हैं किसी भी अभी वाले सैलरी ब्रैकेट से, तो you should plan, everyone should plan a property out of that salary bracket. That's my sincere suggestion. And क्योंकि So property, हाँ जी, होम लोन एज एन इज इट हैव टू बी लाइक होम प्रॉपर की आप कंस्ट्रक्शन भी करो, और प्रॉपर्टी लोन पे भी जैसे अगर yes. हो सकता है क्या? देखिए, फॉर प्लॉट परचेज इट्स नॉट एप्लीकेबल। सो वो घर के लिए ही है लोन। अगर आप घर को कंस्ट्रक्ट करोगे, ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है। अगर आप दो तरह से होते हैं, या तो आप रेडी पोजीशन फ्लैट लेंगे या रेडी पोजीशन बंगलो लेंगे किसी बिल्डर से, या फिर आप खुद प्लॉट परचेज करके कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। कंस्ट्रक्शन अब करेंगे। दोनों का मैं टैक्स ट्रीटमेंट आपको सेपरेट बता देता हूँ। अगर आप फ्लैट परचेज कर रहे हैं या फिर रेडी पोजीशन बंगलो परचेज कर रहे हैं, तो आपको पहले ही साल से, जिस साल से आपने परचेज करा है, जब से आपका ईएमआई रिपेमेंट स्टार्ट हुआ है, उसी साल से आपको पूरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का डिडक्शन का क्लेम, आप पूरा क्लेम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो आपके इनकम टैक्स रिटर्न में। बट इफ यू आर गोइंग बोथ कि आप पहले प्लॉट खरीदेंगे फिर आप कंस्ट्रक्ट करोगे, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो प्लॉट खरीदने के समय पे बैंक ने आपको प्लॉट का लोन दिया है, ठीक है, उस समय बैंक आपकी एक ईएमआई स्टार्ट कर देगी, जितना भी आपने पैसा उठाया है बैंक से, जो भी डिसबर्समेंट लिया है। सेकंड पार्ट इज कि कंस्ट्रक्शन में फेज वाइज आपको पैसा बैंक डिसबर्स करेगी। सो द इंटरेस्ट पोर्शन, जितना भी इंटरेस्ट है इस समय का, जब तक आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो गया, ठीक है, तो ये वाला कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल तो आप पूरा डिडक्शन एटीसी में क्लेम कर सकते हो प्रिंसिपल रिपेमेंट का, बट जो इंटरेस्ट पार्ट है वो पूरा क्लब होगा। मानिए 1.5 साल आपका कंस्ट्रक्शन चला, प्लॉट प्लस प्लॉट परचेज करा, तब से लेके आप 1.5 साल तक आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो 18 महीने का जो इंटरेस्ट है वो पूरा क्लब होगा, वो डिवाइडेड बाय 5 होके, और 20% यू कैन क्लेम फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। तो आपको जो 18 महीने बाद आपका लोन कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद तो आप रेगुलर जो डिडक्शन लोगे लो गई,
प्लस ये जो आपने इंटरेस्ट पे करा है कंस्ट्रक्शन पीरियड में, तो वो आपको पांच ब्रेकअप्स में 20% ईच ईयर you can claim that deduction separately along with your regular EMI which you are paying post completion of construction. So ये treatment थोड़ा सा अलग होता है in both cases, but तो हाँ जी, होम लोन का जो है इवन लेट्स से प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन का, तो ये टोटल एटीसी में ही आएगा इवन हाँ ये 80, देखिए जो प्रिंसिपल पार्ट है वो एटीसी में आएगा, जो इंटरेस्ट पार्ट है वो सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको अलग मिलेगा और प्रिंसिपल का जो डिडक्शन है, प्रिंसिपल का एटीसी की 1.5 लाख की लिमिट में इंक्लूडेड रहेगा। जो एटीसी सेक्शन की 1.5 लाख की लिमिट है जिसमें आप पीएफ, होम लोन, ट्यूशन फीस और ये सब इंक्लूड करते हैं, सुकन्या समृद्धि स्कीम, 5 साल का टैक्स सेवर एफडी हो गया या ईएलएसएस हो गया, सो ये एटीसी में कवर होता है। वो एटीसी की 1.5 लाख की लिमिट के अंदर होम लोन का भी पार्ट आपका इंक्लूडेड रहेगा। तो कई बार ये भी लगता है कि 1.5 लाख ही मेरा रिबेट हो सकता है एटीसी के अंदर, 1.5 से ज्यादा में जा हाँ, सकता, वो इसलिए वो प्लानिंग इसलिए ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने एटीसी सेक्शंस में 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर भी दिया, बट यू आर गेटिंग डिडक्शन ऑफ 1,50,000 ओनली। सो टैक्स प्लानिंग का यही इंपॉर्टेंस है कि आप वहां पे 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट रहे और बाकी आप दूसरे सेक्शंस का बेटर यूटिलाइजेशन करो, तो यू कैन विद दैट सेम मनी यू कैन सेव मोर टैक्सेस। आप ज्यादा अच्छी टैक्स प्लानिंग करोगे तो ज्यादा टैक्स सेविंग भी होगा और आप ज्यादा उसी पर्टिकुलर इतने ही पैसे में आप ज्यादा टैक्स सेव करके Got it. ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन रमन की तरफ से, he is asking like how does TDS work and is it possible that my tax liability and tax deduction amount could be different? So ये हमेशा कई बार पहले हमने भी फेस किया, कई बार इस ITR फाइल कर रहे हैं, so we see that in the form 16 there's a TDS that has been deducted, right? और एक टैक्स लायबिलिटी होती है जो हमारा सारा चेक्स करके वेरिफिकेशन वैलिडेशन के बाद भी करता है, तो इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स डिफरेंट, तो ये क्या कैसे होता है? देखिए टीडीएस हमेशा एम्प्लॉयर काटता है, ठीक है, टीडीएस है लाइबिलिटी एम्प्लॉयर की, वो डिडक्ट करते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ में आपका टीडीएस जमा करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ योर सैलरी इज 10 लाख रुपीस, आपने एम्प्लॉयर को बोला कि एम्प्लॉयर को पता है 10 लाख रुपए सैलरी, आपने एम्प्लॉयर को बोला है कि मेरा 2 लाख की डिडक्शन है। जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन हम आपने जनरली सुना है कि दिसंबर में करना है या फिर जनवरी में करना है डिडक्शन इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, ये उसका डिफरेंस, उसके कारण ये डिफरेंस आता है। सो आपने आपके एम्प्लॉयर को बताएं कि सिर्फ 1.5 लाख की डिडक्शन है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर आपकी 8.5 लाख रुपए की इनकम की स्लैब बना के और फिर उसके हिसाब से आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। बट जब आप आईटीआर फाइलिंग करने जा रहे हैं एट द एंड, तो हो सकता है कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन आपने मिस आउट कर दी हो, तो उस समय आपकी 3 लाख रुपए की डिडक्शन हो गई हो, तो आपका उस समय रिफंड, उस केस में आपका रिफंड बन जाएगा क्योंकि एम्प्लॉयर ने आपकी 8.5 लाख की इनकम पे टीडीएस डिडक्ट कर लिया है और आपका जो वहां पर आपने एक्चुअल डिडक्शन आप देख रहे हैं तो वो हायर एंड पर है डिडक्शंस, तो वो वाले डिडक्शंस इन केस इन जनरल यही होता है। कभी ये नहीं होगा कि टीडीएस कम कटा है और आपके एडिशनल लायबिलिटी आ रही है, वो बहुत रेयर केसेस में होता है। वो उसी केस में होता है कि आपने फॉल्स डिक्लेरेशन करा है, आपने एम्प्लॉयर को फॉल्स डिक्लेरेशन कर दिया था, एम्प्लॉयर को तो आपने जो डिक्लेरेशन करा उसके हिसाब से टीडीएस कट गया, बट जब आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो फिर वो वाला आपने डिक्लेयर नहीं करा, कोई भी डिडक्शन डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो फिर उस केस में लायबिलिटी एडिशनल आ जाती है। ओके, सो यही एक डिफरेंस रहेगा जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन का ही डिफरेंस रहेगा, जिस केस में आपकी टीडीएस लायबिलिटी और एक्चुअल लायबिलिटी अलग आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, सो वी हैव डिस्कस्ड लॉट मेनी थिंग्स, टैक्स प्लानिंग करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है, ये सारी चीजें। सो इट्स लाइक अब यूजुअली ये होता है ना कि वी ऑल हैव एवरीथिंग ऑन गूगल, सो हम लोग क्या करते हैं, गूगल से ही सर्च करते हैं कैसे करना है, क्या करना है, वी डू आवर ओन रिसर्च एंड फिर हम खुद ही, यूजुअली यही होता है कि बंदे जो होते हैं दे वांट टू सेव मनी फॉर पेइंग सम अनदर पार्टी, राइट, तो वो खुद से कर लेते हैं। सो इज दैट ए गुड आइडिया और शैल वी गो टू proper vendors or they're like clear tax we have, then we have tax buddy, right, or the actual CAs like you guys, right? तो क्या यहाँ पे चूज करना चाहिए to do? देखिए इसमें क्या होता है ना, ये जो इसमें बहुत बेसिक सा जो मुझे लगता है कि जिसका काम जिसको करने देना चाहिए वो इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। अगर मैं आज कोई जो मेरी फील्ड का काम नहीं, अगर वो मैं करने की कोशिश करूंगा, सो डेफिनेटली आई विल नॉट बी डूइंग इट दैट प्रॉपर्ली। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है
क्योंकि क्या होता है बहुत सारी चीजें, अब क्लियर टैक्स का मैं बहुत क्लियर एग्जांपल लेता हूँ, इसमें क्लियर टैक्स फॉर्म 16 के बेसिस पे आपको फ्री ITR फाइलिंग देता है, बट अभी लास्ट टॉपिक हमारा ये डिस्कस हुआ कि हो सकता है फॉर्म 16 में जब आपने एम्प्लॉयर को इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करा तो आपने उनको डिडक्शन 2 लाख का डिक्लेयर करा, बट एक्चुअल डिडक्शंस व्हिच कैन बी मैनेज्ड इज अप टू 3 लाख 3.5 लाख, और अगर आप 20 लाख % सैलरी ब्रैकेट में आ रहे हैं, 20% का आपका टैक्स ब्रैकेट लग रहा है, तो अगर 1 लाख का डिडक्शन आप मिस आउट करें, सो यू लूज 20,000 रुपीज इन टैक्सेस अगेंस्ट ऑफ कि आपको 1,500 रुपीज यू हैव टू पे एज द फीस along with the continuous consultation that you can get for the whole year. आपको कभी कोई डाउट है, you can reach out to your consultant or the team who is looking after your taxes, ठीक है. So it's always advisable कि आप हमेशा एक ऐसा point of contact आपके पास होना चाहिए. You should have someone to whom you can reach out at a point of time. आपको कैपिटल गेन्स का आजकल बहुत ज्यादा जैसे प्रॉब्लम है, ठीक है. आप आजकल हर कोई म्यूचुअल फंड स्टॉक्स हो गया है या प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया है, किसी ने कोई प्रॉपर्टी सेल करा है, तो कैपिटल गेन में टैक्सेस का बहुत इशू आता है. सो इफ यू डोंट हैव सम नॉलेजेबल पर्सन इन दिस फील्ड की जो टैक्स मैनेज करे आपका और वो करे, तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ हैवॉक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. बाद में नोटिस आएगा, इंटरेस्ट पे करोगे, पेनल्टी पे करना, वो इट डजंट मेक एनी सेंस. तो बेटर है कि आप उसको एक पर्टिकुलर जो भी एक्सपर्ट है, इट्स वन टाइम टास्क, साल में एक बार करना है. तो मुझे लगता है कि साल में एक बार करने के लिए इतना उसमें प्राइस सेंसिटिव हो क्या, कॉस्ट सेंसिटिव हो क्या ना चले, और आपको बेनिफिट ज्यादा ही मिलेगा rather than he will save more taxes for you than charging the fees in any at any That's a very point. minimal fee. So it's very important कि आप उस चीज को कंपेयर करो. कंपैरिजन के बाद फिर भी आपको लगता है कि ठीक है वो कोई बेनिफिट एडिशनल आ नहीं रहे, you can always file with finally, you can go with clear tax or any free filing for with any other agency who is doing that. तो वो मुझे लगता है कि आप उसमें वो कंपैरिजन एक बार करना चाहिए. Sure, nice. Thanks, Karan. So I think we had pretty good insights on the tax planning, tax deduction, and how the TDS work, and how it's deducted, what's tax liability. So we had pretty good insights out there. Now I would like to know some more onto investment. It's a huge topic and it can go on for hours, but so we can just short glimpse because we'll be having multiple sessions going forward. So at least we'll just keep a placeholder right now that okay, this is the topic that we might cover in the next one. So a brief on investments in stocks and trading. I'll just first start with the इन्वेस्टमेंट में. सबसे पहले मुझे जो लगता है कि अभी बैंक्स हो गए हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, इन्होंने इतना पॉपुलराइज कर दिया है कि पीपल कंसीडर इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नाउ, क्योंकि वो पिच ऐसा करते हैं. आप यूलिप प्लान ले लो, आप 5 लाख रुपए हर साल डालो तो आपको 12 साल बाद इतने रुपए मिलेंगे, फिर वो आपको EMIs मिल जाएगी कि हर महीने आपको 50,000 मिलेंगे, या फिर हर साल आपको, है ना, एंड यू विल गेट अ लंप सम अमाउंट एट द एंड ऑफ 40 इयर्स और 45 इयर्स, ठीक है. सो आई विल सजेस्ट कि ये वाला टैक्स प्लानिंग इज गुड, बट एट द पॉइंट कि आपके पास में सरप्लस फंड्स बच रहा हो, ठीक है. यू आर कमिंग इन अ सैलरी ब्रैकेट ऑफ 40-45 लाख रुपीस आपका सैलरी ब्रैकेट आ रहा है, और फिर आपके पास सरप्लस फंड्स बच रहा है कि ठीक है ये मुझे एक सेफ्टी के हिसाब से चाहिए कि मुझे 10 साल बाद एक फिक्स्ड इनकम या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट मुझे मिले. बट अगर आप इसको एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ठीक है, बट टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू में आई विल सजेस्ट कि ऑलवेज फर्स्टली गो विद द टर्म प्लान, ठीक है. तो आपको इंश्योरेंस लेना है तो सबसे पहला इंश्योरेंस आपका टर्म प्लान होना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. समय तो बोलकर आएगा नहीं, तो आप जब भी प्लान करो सबसे पहले आप टर्म प्लान करो कि इफ समथिंग हैपेंस योर फैमिली इज फाइनेंशियली सिक्योर्ड, ठीक है. ये यूलिप प्लान में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यू आर पेइंग एनुअल प्रीमियम ऑफ 2 लाख रुपीस, सो यू जस्ट गेट 10 टाइम्स ऑफ द कवर. 20 लाख का कवर है, 20 लाख में कुछ भी नहीं होता, ठीक है. आप 2 लाख रुपए साल की प्रीमियम पे करोगे, आपको मिलेगा 20 लाख का कवर. वहीं अगर आपको 2 करोड़ का कवर टर्म प्लान में चाहिए, you just fall around 30 to 35,000 rupees of premium in the age group of 30 years, around 30 years I am speaking of, कि अगर आप 30 साल से आसपास हो तो 2 करोड़ का कवर आपको 40,000 की प्रीमियम में मिलता है. ऑल्दो कि उसमें कोई इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला स्कीम नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हायर कवर अमाउंट आप इनिशियली प्लान करो फॉर द
सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ यूलिप प्लान्स एट द इनिशियल स्टेज। जब आपके पास अच्छा सरप्लस पैसा रहता है तब आप यूलिप में जाओ, कोई खराब प्लान नहीं हो, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो अनसीन रिस्क है उसको आप पहले कवर करो, ठीक है। सेकंड इज मेडिकल इंश्योरेंस। आप मेडिकल इंश्योरेंस में आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान के बाद में आप मेडिकल इंश्योरेंस को कवर करो। हेल्थ कॉस्ट, हेल्थ ट्रीटमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव नाउअडेज। सो एक आपके पास वो बेनिफिट होना चाहिए कि इन केस आपको कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है, सो यू डोंट हैव टू पुल आउट ऑल योर सेविंग्स एंड पे टू द हॉस्पिटल। तो ये वाला चीज ना है। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। सो इन्वेस्टमेंट के लिए आप यूलिप पहले दिन कभी मत जाओ। Now the second option, the best option we can, with smaller amounts, what you can start is mutual funds. म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या होते हैं? स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स के बीच में हम पहले डिफरेंस समझते हैं, फिर हम बढ़ते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में क्यों करना चाहिए और किस तरह से आप उसको एनालाइज करो कि क्या म्यूचुअल फंड्स में मूव करना है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली इट्स अ पूल ऑफ स्टॉक्स। वो बहुत सारी कंपनी, एक फंड मैनेजर अलॉट होता है, so they are fund manage asset management companies, they allot a fund manager। वो फंड मैनेजर को एक बड़ा सा फंड मिलता है फॉर, जैसा इंश्योरेंस में होता है बेसिकली कि 50,000 लोगों ने 1-1 लाख रुपए मिलके एक बहुत बड़ा सा 50,000 करोड़ का या 5,000 करोड़ का एक फंड बना लिया है, 500 करोड़ का एक फंड बना लिया है, और वो फंड फिर अलग अलग एसेट्स में अलोकेट करते हैं, अलग अलग कंपनीज में। अब इसका बेनिफिट ये रहेगा, सबसे पहले तो आपको एक एक्सपर्ट मिल जाता है जो बहुत नॉलेजेबल है, हमसे तो बहुत आगे है, जो जिसका काम ही है कि वो पूरे दिन स्टॉक्स देखना है, उनको इन्वेस्टमेंट्स प्लान करना है, दे ट्राई टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स, ठीक है। सो म्यूचुअल फंड्स में एक सिक्योरिटी आपको ये मिलती है कि आपके एंड पे कोई एक लर्नेड पर्सन है जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, एंड ही इज ऑलवेज लुकिंग आफ्टर योर फंड। तो वो वाले फंड में आपको एक पर्टिकुलर रिटर्न्स हमेशा गारंटीड रहते हैं। सो अगर आप लास्ट 5 इयर्स का एवरेज रिटर्न भी देखते हैं म्यूचुअल फंड्स का, इट्स अराउंड 40 to 50% ऑफ द एनुअल रिटर्न्स। अगर आप देखते हैं तो 25-30% रिटर्न्स इजीली म्यूचुअल फंड्स फेच करते हैं, व्हिच इज फार बेटर देन एनी एफडी, या फिर आप वो करते हैं, ठीक है, एफडीज कर रहे हो या फिर आप गोल्ड ले रहे हो तो गोल्ड से भी ज्यादा अच्छा, और लिक्विड बहुत है। आपको कभी भी फंड का रिक्वायरमेंट पड़ा, यू कैन जस्ट गो ऑन योर पोर्टल एंड यू कैन सेल द फंड एंड यू कैन एग्जिट एंड गेट योर मनी बैक। सो एक लिक्विडिटी बहुत अच्छा उसमें फीचर है, आपको मिल जाता है। एंड सेकंड इज कि आपको रिटर्न्स तो अच्छे है ही, 25% रिटर्न इज अ वेरी गुड रिटर्न, एनुअल रिटर्न इफ यू कंसीडर, तो इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। यू डबल योर मनी इन अराउंड 3.5 years in that case. In FD at least you require 80 years to double your investment. So बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो आप म्यूचुअल फंड्स कंसीडर, म्यूचुअल फंड्स में तो काफी मिनिमल से भी स्टार्ट हो जाता है ना, मिनिमल ईएमआई से हाँ, भी आप 500 रुपए का एसआईपी से भी स्टार्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली। कुछ फंड्स में तो 500 रुपीज एसआईपी का मिनिमम अमाउंट होता है, 1000 रुपीज मंथली से कर सकते हैं, एंड यू कैन चेंज इट एनी टाइम, यू कैन पॉज इट एनी टाइम, एंड यू कैन इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट एनी टाइम। फिर आप लमसम परचेज, तो एनी टाइम यू हैव द ऑप्शन कि आप लमसम परचेज कर सकते हैं। सो म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस व्हिच आई कंसीडर, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आपका जो मेन स्ट्रीम है, इफ यू आर इन एज यू आर आईटी प्रोफेशनल, so you don't need to get yourself involved। आपके एंड पे तो कोई और आपका फंड मैनेज कर रहा है, ठीक है, और आपको पता है, आपको तो हर थोड़े दिन में देखना है कि ठीक है मेरा इतना रिटर्न हुआ है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्वेस्टमेंट टिप होती है, कभी भी आप मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म, वी आर नॉट ट्रेडर्स बेसिकली, है ना। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, यू शुड हैव मिनिमम होराइजन ऑफ 3 years। आप अगर आपने ऐप दे दी है कंपनी ने, आप म्यूचुअल फंड डाल दिया, और अगर आप रोज ट्रेस कर रहे हो कि अरे आज मेरा तो 5,000 रुपए ऊपर चला गया, फिर अभी 2 दिन पहले मार्केट गिरा तो 2,000 रुपए नीचे आ गया, 10,000 रुपए लॉस हो गए, सो इट विल नॉट मेक एनी सेंस। आप पैनिक सेलिंग करके बाहर हो जाओगे, जब असली समय आएगा प्रॉफिट बुकिंग का, उस समय आप मार्केट में रहोगे ही नहीं, या फिर आप इतना रिटर्न बनाओगे नहीं। सो नेवर गो विद ट्रेडिंग काइंड ऑफ प्रैक्टिस। हमेशा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लान करो, 3 years 2 years, हैव सम टारगेट। बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज अ हाउस 3 years लेटर, तो आप 3 साल का होराइजन लेके एक ऐसा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करो जो 3 साल में आपको 20-25% का रिटर्न डिराइव करके दे,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है. डोंट ट्राई टू एग्जिट इन एवरी 4 मंथ 6 मंथ्स की प्रॉफिट बुकिंग कर लिया फिर हम बाहर हो गए. सो वो आप उसमें आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे. You will always lose money in that kind of pattern. Correct. ठीक है. There are actually many more things to discuss on this, but we have time constraint. There are a couple more questions. Yeah. Anytime. Yeah. So next session would be based on that. Nayan asked that mutual funds give tax benefits. It's only ELSS, right? Yeah. Not all the right. No, right, not all the mutual funds give tax benefits. So ELSS are those specified mutual funds जिसमें आपको tax benefit मिलेगा. उसका कारण And भी you ये have है some कि lock-in इनमें period. थोड़ा सा रिटर्न्स भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम रहता है. लॉक इन पीरियड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है. यू कांट एग्जिट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो भी लॉक इन पीरियड है जिस भी म्यूचुअल फंड का. सेकंड इज उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उनका जो भी CAGR आता है, एनुअल रिटर्न आता है, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होता है. But for tax saving purpose, along with investment purpose, it's a good option. It's a good thing. Correct. We don't find any issues with that. ठीक है, आपका 30% टैक्स तो उन्होंने पहले दिन बचा दिया है, तो आप उसको उस तरह से देखो कि 30 आपको तो अगर 1 लाख का फंड खरीदा है, तो इफेक्टिवली अगर आपका 30,000 टैक्स बच रहा है 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में, तो आपको तो 70,000 पे पड़ा पहले 70,000 ही लगा है. Correct. ना. और उसके बाद वो बेटर ऑप्शन. उसके बाद आपको 15-18% का वो रिटर्न दे रहा है. सो FD से ये ऐसे भी डबल दे रहा है रिटर्न. तो anytime ELSS is not a bad option. You should always go with ELSS rather than if you are planning to go with FD, 5-year FD, tax saver FD. तो उससे बेटर है कि आप इसमें ऑप्ट करें ELSS. ठीक है, we can. Sure. Thanks, Karan. So we can discuss more onto these because there are so many questions on investment as well for mutual funds, SIPs, ELSS, and the ULIP plans. So all that we can take it up in our upcoming webinar probably next weekend or after that. You'll get our flyers again, and we can have a detailed discussion there. Bharat also asked. There is another question from Naval also. So I think we'll just see these questions. We'll answer these questions in the next call. For today's call, I think it was a very good and detailed, informative session on the tax planning and other details. I'm so sorry, guys. I could not interact with each and every one of you because it was really the question and answer session type, because there were so many things we wanted to discuss. So yeah, we tried to cover up most of them. Anyone, anything, guys, before closing the call? करण, मेरा क्वेश्चन GST को लेकर था. Okay. GST registered form है. Shailendra, we are already yeah, we are already on time. So I think you can just post the question here in the chat. So what we will do is that हम लोग ये सारे questions cumulatively ले लेंगे and then next session में हम इनको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं. और अगर बीच में रहा तो we'll send you back the reply. Okay, sure. I hope that's all right. Okay, chalo. Thanks. So thanks a lot, Karan. We'll meet again. We'll see you again, and then we can have more detailed discussions on the other topics. Thank you so much. Yeah, thank you, Vivek. Everyone has been very supportive, and it was a great session with everyone. And hope to join you all again in the next session. Yeah, sure. Yeah, definitely. Thank you, everyone. Thanks all for joining. Okay, have a nice day. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you. Bye.